Hello everyone, welcome to Maneuver, and guys, this is the part 6. So in this series wise current affairs, so this is the part 6. Previously I already given the part 1, part 2, part 3, that is related to June month, May month current affairs and some static area related to the census 2011 and award section. So in this part wise we are preparing for the current affairs and static GK also. So basically target of this series is 30 plus. How easily you can get 30 plus marks in TISNET exam if you are targeting TIS 2023. So basically in this session we will discuss about the July month current affairs from the different area, from the appointment section, from the government scheme, obituary, award, sports section. So what are the important area from highly expected questions is it possible to frame in your exam, so that we will cover. So in this way we are targeting as per the month wise current affairs as well as static general awareness also. Okay, so next part 7 we will discuss about the static GK, whatever it will be. So according to that I will give the content to you guys. Okay, so this is the part 6. So just see carefully all the important current affairs from the July month. And before that guys, if you are seriously planning want to prepare for the TISNET exam and targeting the 2023 and 2024, so here we started the batch for it. If you are Mumbai based student, so you can join for the classroom. Otherwise if you are out of Mumbai or out of Maharashtra, so you can join our live classes, okay, where you will get ebooks and books. If you are offline, so books मिलेंगे hard copy. If you are online, so ebooks मिल जाएगा. Shortcut method, that is very important to clear the any entrance exam. So as per the last 5 years, whatever the questions are coming, based on that what is the right way to solve the question, so that everything we will discuss, and what are the most possible and best shortcut for it, that we will provide you. Okay, doubt classes मिलते हैं आपको, doubt, because doubt clearance is very important. Recorded video मिलता है concept clear करने के लिए, topic wise test to improve your speed and command on particular topic, mock test, full length mock test होता है where you can practice how is your speed, how you people are solving the question. It means overall you can evaluate yourself. And WhatsApp group 10,000 plus question, and mentorship is very important. Mentor will guide you time to time as per your performance, as per your doubt, जो भी doubt and query है उसके according mentor आपको guide करेंगे. So ये सब सारी facilities है. So if you are interested, so you can inquire on this number 8828581455, or you can visit on our website. Okay, so these number are given for the center, so you can call also on these number for classroom program के लिए. Okay guys, now come to the July month, which is most important current affairs, and from here possibility है questions किसी न किसी form में frame हो सकता है, तो आपकी भी responsibility है. So just focus on these current affairs जो मैं यहाँ पे explain करूँगा, as well as you can make your own note इस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स से रिलेट करके और भी डिटेल में आप स्टडी करो, क्योंकि अभी टाइम काफी अच्छा है, तो अभी से इन डिटेल्स स्टडी करना स्टार्ट करोगे तो दैट विल बी बेटर. उसी करंट अफेयर्स से रिलेट करके स्टैटिक ओरिएंटेड आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वॉट एवर द थिंग्स इज पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स. अभी जस्ट मैंने लॉ सिटी 3 years एंड 5 years एग्जाम भी अपियर किया, तो वहां पे स्टैटिक ओरिएंटेड क्वेश्चन करंट अफेयर से कनेक्ट करके ही पूछा था. जितने भी क्वेश्चन स्टैटिक ओरिएंटेड थे वो सब करंट अफेयर से कनेक्ट करके ही थे, तो उसी वे में बेसिकली क्वेश्चन फॉर्म होते हैं. तो ऐसे ही आपको प्रिपेयर करना होता है. इफ यू हैव अ राइट नोट्स, एक प्रॉपर नोट है, तो उस बेसिस पे अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आप पॉसिबिलिटी है कि हाई स्कोर करोगे एग्जाम में. अदरवाइज कंटेंट बहुत ज्यादा है, स्टैटिक इज वेरी लेंथी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कितना सारा कुछ है. करंट अफेयर्स इज ऑल्सो कंटेन द नेशनल, इंटरनेशनल, ऑबिचुरी, अवार्ड, सो मेनी थिंग्स आर देयर. ओके, तो उन्हीं से कनेक्ट करके आपको प्रिपेयर करना होता है. सो जस्ट मेक अ राइट स्ट्रैटेजी. और अगर स्पेसिफिक कोई डाउट है स्ट्रैटेजी को लेकर, तो यू कैन कमेंट. आई विल मेक अ स्पेसिफिक वीडियो ऑन इट कि कैसे आप करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके को कनेक्ट करके प्रिपरेशन कर सकते हो. इफ यू पीपल वांट, सो जस्ट कमेंट. अगर से काफी लोगों की रिक्वेस्ट आए, तो डेफिनेटली आई विल मेक अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके connected with the current affairs. Okay, now come to this question, information current affairs. PM Narendra Modi unveiled India first passenger drone, which is its name is a Varuna. So possibility है, बस यही नाम पूछेगा. What is the name of the first passenger drone which is unveiled by the Prime Minister Narendra Modi? ऐसा पूछ सकता है. Okay, so detailed information is here. Prime Minister Narendra Modi has unveiled the Varuna, India's first, because this is the first. कहीं पे भी first लग जाएगा, that is important. Passenger drone, PM Modi is seen watching the demonstration of this drone. ठीक है, तो बेसिकली आपको रिमेंबर रखना है इसका नाम. बाकी इन डिटेल्स आपको स्टडी करना है, तो यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन डिटेल एंड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए गए हैं. सो आपके एक सिर्फ
अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक हेल्प के लिए कि क्या क्या किस टाइप के न्यूज बेसिकली एग्जाम्स के लिए एक्सपेक्टेड होते हैं। लार्ज स्टैचू ऑफ द चंद्रशेखर आजाद टू बी इरेक्टेड इन भोपाल। सो देखो ही इज अ वेरी वेल नोन फ्रीडम फाइटर है, अब इनकी स्टैचू को वहां पे बनाया गया है, तो वो कहीं ना कहीं न्यूज में है। पॉसिबिलिटी है कि ये कहां पे है, वो एग्जाम्स में आ सकता है एज अ करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अदरवाइज चंद्रशेखर आजाद से रिलेट करके स्टैटिक ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल आस्क यू व्हेन ही वाज डाइड, इन्होंने आपको याद होगा इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद को शूट कर लिया था, बिकॉज ही वांट कि जो ब्रिटिशिस हैं जीते जी इनको टच न कर पाए, तो इसलिए ना इन्होंने खुद से अपने रिवॉल्वर से शूट कर लिया था। पूरी स्टोरी आपको पता है। इफ आई विल आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हेन ही वाज डाइड, सो इनका जो डेथ हुआ था कभी हुआ था। सो अगर मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको कमेंट में आंसर करना है। सो 1932, 1930, 1931, for example 33. Okay, so these all are the 4 options, so you have to give the answer in a comment. That is static question from the हिस्ट्री से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे ही कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस न्यूज इज अ पार्ट ऑफ द करंट अफेयर, एग्जाम में पूछेगा रिलेटेड टू द चंद्रशेखर आजाद, उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अदरवाइज हिस्ट्री सब्जेक्ट से, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट लॉन्च जागृति इट्स न्यू मैस्केट। मैस्केट रिलेटेड क्वेश्चन काफी आता है, मैस्केट रिलेटेड क्वेश्चन काफी आता है। पॉसिबल होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं सारे जो स्पोर्ट्स इवेंट अभी हो रहे हैं, कॉमनवेल्थ हो रहा है, एशियाड होने वाला है, एंड वर्ल्ड फुटबॉल होने वाला है, जो भी आईसीसी वर्ल्ड कप होने वाले, सबके मैस्केट एंड वेन्यू इज इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम। तो आप लोगों के एग्जाम्स के लिए जो 2023 में होने वाला वो भी इंपॉर्टेंट होगा। सो ऐसे मैस्केट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सो व्हाट इज इट? जागृति इज अ मैस्केट क्रिएटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स with the goal of empowering the customer and raising the awareness of their rights. Okay, so इसको आप स्टडी कर लेना, that is important। 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, थोड़ी सी रिलेटेड इससे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यही कनेक्ट हो रहा है करंट अफेयर्स और स्टैटिक। ओके गाइस, नेक्स्ट वन इज फ्रिटेंड मार्कोस जूनियर टेक द ओथ ऑफ फिलीपींस प्रेसिडेंट। फिलीपींस के न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक वेल नोन इंटरनेशनल लीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इनका जस्ट रिमेंबर रखो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, दैट्स इट। सिमिलरली श्रीलंका क्राइसिस आपको पता ही है श्रीलंका में क्या चल रहा है। सो रिलेटेड टू दैट वहां का भी जो भी अपॉइंटमेंट होगा प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट का, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, बिकॉज इट इज अ हाईली लेवल वेल नोन इंटरनेशनल लेवल न्यूज। सो दिनेश गुणवर्धने sworn as the new 15th prime minister of Sri Lanka. So that's it. Heading is important. सिर्फ नाम, and he's appointed as the prime minister of Sri Lanka. That's it. Okay, इतना आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम नेम एज अ न्यू कुवैत प्राइम मिनिस्टर। सो गल्फ कंट्री से भी काफी क्वेश्चंस मैंने एग्जाम्स में देखा है, तो ये भी इंटरनेशनल एंड अपॉइंटमेंट इस तरह की न्यूज है। सो कुवैत अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल शबाब इज इशूड एज अ, काफ़ी लेंथी नेम है, अरबियंस नेम ऐसे ही होते हैं। एंड डिक्रीज द अपॉइंट द शेख मोहम्मद सबा अल सलाम वाज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर। सो जस्ट कुवैत से रिलेट करके हैं, तो इंपॉर्टेंट है थोड़े से। ओके, चाइना लॉन्च द वेंटाइन सेकेंड ऑफ 3 स्पेस स्टेशन मॉड्यूल, दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो ये सिर्फ रिमेंबर रखो, दिस स्पेस स्टेशन इज रिलेटेड टू द चाइना, दैट्स इट। चाइना लॉन्च द सेकेंड of the 3 modules needed completed its new space station. This was the most recent development in the Beijing's ambitious space program. So आपको just remember रखना है इसका नाम, and it's belong to the China. Science and technology से important है। अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था, मैंने एक एग्जाम्स अपीयर किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। नासा का जो ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं ना, ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, नॉट अ सैटेलाइट बेसिकली, इस ऑब्जर्वेटरी, उसका देखो एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं रहा। सो बेसिकली उसका नाम क्या है नासा का ऑब्जर्वेटरी, एग्जैक्टली क्वेश्चन व्हाट वाज इट रिमेंबर नहीं हो रहा, तो वो पूछा था, हबल करके है वो बेसिकली, आप गूगल कर लेना थोड़ा सा, हबल करके आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस टाइप के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी होते हैं ना, चाहे इंडिया का स्पेस एजेंसी हो, इसरो हो, चाहे डीआरडी हो, या फिर नासा हो, फिर या फिर चाइना का स्पेस एजेंसी हो, तो वर्ल्ड वाइड जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी वेल नोन कुछ ऐसे इनोवेशंस होते हैं, कुछ अचीवमेंट होता है, तो पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम्स के लिए। ओके, वासिफा नजरीन फर्स्ट बांग्लादेशी, सी इज ऑल्सो द फर्स्ट बांग्लादेशी टू क्लाइम द K2 सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पे इन्होंने भी एक रिकॉर्ड बनाया है। सो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। माउंटेनर वासिफा नजरीन बिकम द फर्स्ट पर्सन टू फ्रॉम बांग्लादेश टू असेंड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड K2 द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर हर नेम एंड सी बिलोंग टू बांग्लादेश, दैट्स इट।
Next one is Karnataka. Sini Setti crowned the Femina Miss India 2022. So Sini Setti has owned the title of the Femina Miss India 2022. She will now represented India at the 71st Miss World Pageant. इसमें इंडिया के बिहाफ से पार्टिसिपेट भी करेंगी, तो जस्ट रिमेंबर हर नेम, थोड़ा सा अवेयर रहो एंड इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेट करके क्वेश्चंस आते हैं. ओके, यूके पार्लियामेंट हॉनर तनुजा नेशारी विद आयुर्वेदा रत्न अवार्ड. सो अवार्ड सेक्शन से काफी इंपॉर्टेंट है. एक इंडियन पर्सनालिटी को यूके की पार्लियामेंट ये अवार्ड दे रही है, सो एक्सपेक्टेड हो सकता है नेम ऑफ द पर्सन. सो तनुजा नेशारी, डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, वाज अवॉर्डेड विद द आयुर्वेदा रत्न अवार्ड बाय द यूके पार्लियामेंट. सो काफी एक अचीवमेंट भी है इंडिया के, एंड इंडिया के किसी पर्सनालिटी को ऐसे अवार्ड मिलते हैं, सो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए भी. ओके, पल्लवी सिंह विन द मिसेस यूनिवर्स डिवाइन क्राउन इन साउथ कोरिया. सो एक और इंडियन पर्सनालिटी का यहाँ पे अचीवमेंट है. सो बेसिकली अवार्ड भी है एंड पर्सनालिटी भी है. इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं. इंडिया, पल्लवी सिंह हैज ओन द मिसेस यूनिवर्स डिवाइन टाइटल एट द फाइनल हैंड एट यूशू सिटी, साउथ कोरिया. ओके, सो बाकी डिटेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जस्ट हेडिंग्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेट करके आप कनेक्ट कर लो, एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग रखो, अवेयरनेस रखो. नेक्स्ट वन इज भगवानी देवी 94 ओन गोल्ड मेडल इन 100 मीटर स्प्रिंट इन फिनलैंड. वेरी वेरी वेल एंड गुड न्यूज फ्रॉम द स्पोर्ट्स सेक्शन एंड हाईली एक्सपेक्टेड भी हो सकता है एंड काफी बड़ा अचीवमेंट है. सीजन 94 ईयर ओल्ड एथलीट बोल सकते हो. तो भवानी देवी डागर 94 ईयर ओल्ड इंडियन स्प्रिंटर ओन द गोल्ड मेडल इन 100 मीटर स्प्रिंट एट द टैम्पर फिनलैंड वर्ल्ड मास्टर एथलीट चैंपियनशिप. सो स्पोर्ट्स सेक्शन से काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज है. कॉमनवेल्थ गेम 2022 वेट लिफ्टर संकेत सरगार विन द सिल्वर मेडल. इंडिया के लिए फर्स्ट मेडल इन्होंने विन किया है. एंड नोट कर लो गाइस, कॉमनवेल्थ जो गेम चल रहा है अभी भी चल ही रहा है, कंटिन्यू. इंडियन जो स्पोर्ट पर्सन है कंटिन्यू गोल्ड सिल्वर कुछ ना कुछ. वेट लिफ्टिंग में सबसे ज्यादा सिल्वर मेडल्स आए हैं इंडिया को अभी तक जो भी चल रहा है टूर्नामेंट, ये स्पोर्ट्स इवेंट. सो कॉमनवेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके रख लो अभी कि कॉमनवेल्थ को काफी अच्छे से स्टडी करना है. व्हाट इज द मैस्केट फॉर इट, व्हाट इज द मैस्केट, व्हाट इज द वेन्यू एंड द नेम ऑफ द इंडियन पर्सनालिटी जिन्होंने भी पूरा मेडल विन किया ना, सिल्वर गोल्ड एंड ब्रॉन्ज. सारे डिटेल्स में से कोई ना कोई पूछा जाएगा 100%. अभी रिसेंटली मैंने ये एग्जाम दिया लॉ सिटी का, उसमें पूछा था इंडिया ने ओलंपिक में टोटल कितने मेडल विन किए थे. वांट टू गिव द आंसर इन कमेंट गाइज. हाउ मेनी मेडल ओन बाय द इंडियन एथलीट्स, जो भी डिफरेंट इवेंट में आपको आंसर करना है कितने मेडल. चलो ऑप्शन दे देता हूं, 6, 7, 8, 9. हाउ मेनी मेडल्स ओन बाय द इंडिया इन ओलंपिक 2020. इसको 2020 बोलते हैं बेसिकली, ये 2021 में हुआ था. 2021 इट वाज हेल्ड इन टोक्यो, बट एक्चुअल में ये 2020 का ही इवेंट था. बिकॉज ऑफ पैंडेमिक इट वाज पोस्टपोन. ठीक है, सो कितने मेडल्स इंडिया ने विन किया था इस ओलंपिक में, आपको आंसर देना है कमेंट में. ओके, तो आपके लिए जो टास्क में दे रहा हूं कॉमनवेल्थ को नोट करके रख लो, इंपॉर्टेंट है, हाईली एक्सपेक्टेड, 100% आई कैन से पॉसिबिलिटी है 1 क्वेश्चन की फ्रॉम द कॉमनवेल्थ गेम. ओके, तो यहाँ पे जो भी इंडियन पर्सनालिटी जो भी मेडल्स विन करें, देखो अभी तक का जो है मैं सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको कवर करना. कॉमनवेल्थ गेम 2022 वेट लिफ्टर गुरुराजा पुजारे विन द ब्रोंज. कॉमनवेल्थ गेम 2022 मीराबाई चानू विन द इंडिया फर्स्ट गोल्ड. सो देख सकते हो इन्होंने ओलंपिक में भी मेडल विन किया था, यहाँ पे भी गोल्ड मेडल इन्होंने विन किया है. सो ये सब सारे स्पोर्ट पर्सनालिटी का नाम आपको पता होना चाहिए, कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं ये आपको पता होना चाहिए. 1 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा. कॉमनवेल्थ गेम 2022 विद्या रानी देवी विन द सिल्वर मेडल. सो सी इज ऑल्सो फ्रॉम द विनिंग द मेडल फ्रॉम द कॉमनवेल्थ गेम. एंड वेट लिफ्टिंग में काफी इंडिया ने विन किया है. चाहिए तो मैं एक आध वीडियो इस पे स्पेशल बना दूंगा कॉमनवेल्थ गेम पे ही, टोटल मेडल एंड हु इज अ विनर एंड कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं. तो ये कंप्लीट वीडियो आपको एक मैं दे दूंगा आफ्टर एंड ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम. ओके, मीनाक्षी लेखी लॉन्च द स्वाधीनता संग्राम ना सूरवीरो. दिस इज द नेम ऑफ द बुक. सो सी इज अ वेल नोन लीडर बोल सकते हो एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चरल. मीनाक्षी लेखी हैज लॉन्च द बुक गुजराती कमेमोरेशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रीडम फाइटर एक्ट फंक्शन. सो बेसिकली बुक्स एंड राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एंड 1 क्वेश्चन की हाई पॉसिबिलिटी होती है. सो एज पर द जुलाई मंथ जो भी बुक्स एंड राइटर है वो यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ. अपकमिंग मंथ एंड प्रीवियस मंथ जो ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है और अपकमिंग में जो भी आएंगे उनको मैं कवर करूंगा. सो बुक्स एंड राइटर 1 मार्क्स इज हाईली पॉसिबल फॉर योर एग्जाम. सो जस्ट रिमेंबर रखो. हिमाचल गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अनवेल द बुक
द मैकमोहन लाइन, द मैकमोहन लाइन। सो एक ज्योग्राफी से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैकमोहन लाइन इज बिटवीन विच टू कंट्री? इंडिया पाकिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल। इस तरह से आप ऑप्शन भी बना सकते हो। सो गाइज जस्ट गिव मी द आंसर इन द कमेंट। मैकमोहन लाइन आप इसको मेंशन करना, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे पूछ चुके हैं, यहाँ पे पूछा है। तो मैकमोहन लाइन इस तरह से मेंशन करना, मैकमोहन लाइन बिटवीन विच टू कंट्री, ठीक है, वो आपको आंसर करना है। सो गवर्नर हिमाचल प्रदेश राजेंद्र विश्वनाथ रेलकर रिसेंटली रिलीज अ बुक टाइटल द मैकमोहन लाइन द सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है। तो बुक्स एंड राइटर से दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज अ बुक टाइटल दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लेजेंड बाय द फैजल फारूकी। सो वन मोर क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट है, इट्स रिलेटेड टू द दिलीप कुमार। सो just remember, as a July point of view, a new book on the legendary actor of the Indian cinema Yusuf Khan, better known as a he is known as a Dilip Kumar। बेसिकली इनको जो पूरी पब्लिकली लोग जानते हैं दिलीप कुमार के नाम से, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर। नेक्स्ट वन इज अ लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ यूपीएससी। सो ये है गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट से रिलेट करके, काफी इंपॉर्टेंट होता है अपॉइंटमेंट सेक्शन, क्वेश्चंस आते हैं। ओके, रिटायर आर्मी ऑफिसर राज शुक्ला हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ यूनियन मेंबर सर्विस कमीशन। अभी रिसेंटली जो लॉ एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, जो हमारा गेस होता है बेसिकली क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिलेट करके आया था, राजीव कुमार से रिलेट करके, जिनका 15 मई को अपॉइंटमेंट हुआ था और एग्जाम अभी हो रहा था अगस्त में, राइट। तो वहां से क्वेश्चन पूछा था। तो लास्ट के 3-4 मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होते हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर इट। फॉर्मर एससी जज विनीत सरन अपॉइंटेड द न्यू बीसीसीआई एथिक्स ऑफिसर। सो यहाँ पे भी एक और बड़ा बीसीसीआई को लेकर के यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ है। सो जस्ट रिमेंबर हिज नेम। वन मोर अपॉइंटमेंट, इंडियन इंद्रमीत गिल नेम एज अ वर्ल्ड बैंक चीफ इकोनॉमिस्ट। सो गाइज वर्ल्ड बैंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। यहाँ से क्वेश्चन हेडक्वार्टर, फॉर्मेशन, वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इन सब से क्वेश्चन आता है। तो एक इंडियन पर्सनालिटी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड जस्ट रिमेंबर अबाउट these all financial as well as other important organization of the world, highly expected होता है 1 मार्क्स के लिए। ये भी important organization, its headquarter and its formation, कभी इसका फॉर्मेशन कभी हुआ था, ठीक है। R.K. Gupta name as the Deputy Election Commissioner. So senior bureaucrats R.K. Gupta was appointed as the Deputy Election Commissioner. An order issued by the Personal Ministry said is the common to the place of T. Srikant. तो अभी इनको Deputy Election Commissioner अपॉइंट किया गया है। Who is the Chief Election Commissioner? Chief Election Commissioner is a Rajiv Kumar. Okay, and he was appointed on 15 May. 15 मई को उनका अपॉइंटमेंट हुआ था। अभी यहाँ पे इनका चीफ डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट पे इनको अपॉइंट किया गया। सो वो क्वेश्चन एग्जाम में भी रिसेंटली आया हुआ था। PSLV C-53 रॉकेट कैरिंग 3 सिंगापुर सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो। सो इसरो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। सो कोई भी अचीवमेंट है, कोई भी सक्सेसफुल लॉन्च होता है तो एक्सपेक्टेड हो जाता है एग्जाम्स के लिए। तो 3 Singaporean satellite were successfully launched by the Indian Space Research Organization ISRO as a part of the commercial mission for the New Space Limited, ठीक है। सो अभी इंडिया दूसरे कंट्रीज के भी सैटेलाइट को लॉन्च करता है, ठीक है। सो इंडिया के लिए काफी बड़ा अचीवमेंट है ये। कभी हम दूसरे कंट्री के थ्रू अपना सैटेलाइट भेजते थे, बट नाउ इंडिया इज कैपेबल टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट एज वेल एज अदर कंट्रीज। आप कंटिन्यू न्यूज में देखते रहते हो कि अदर कंट्री के भी सैटेलाइट इंडिया भी लॉन्च करता है। Anvi Dhangethi become the AATC youngest एनालॉग एस्ट्रोनॉट। सो बेसिकली एक प्रोग्राम होता है जिसमें नासा ना पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से नियर बाई 20 स्टूडेंट और 25 स्टूडेंट, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट 20 से 25 स्टूडेंट को लेता है। उनकी पूरी ट्रेनिंग होती है एस्ट्रोनॉट से रिलेट करके। सो उसमें जो इंडियन पर्सनालिटी को सेलेक्ट किया गया था, सी इज 19 years old, जानवी हैड स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द यंगेस्ट टू कंप्लीट द एनालॉग एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम from the Analog Astronaut Training Center AATC at Kharkov in South Poland. So basically एक प्रोग्राम होता है नासा का जिसमें इस टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है। तो एक इंडियन गर्ल इसके लिए सेलेक्ट होती है, तो दैट इज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस, ओके, एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर करेंट अफेयर्स एंड आवर अंडरस्टैंडिंग। सो एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम इंस्टॉल्ड एट राजीव गांधी इंस्टीट्यूट। सो गाइज दिस इज द फर्स्ट एवर इस तरह का रोबोटिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, बायोटेक्नोलॉजी बोल सकते हो। तो इस तरह से इसको अंडर द मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो इंडिया में कंटिन्यू चल रहा है, तो उसके बिहाफ पे ये बनाया गया। राजीव गांधी
Cancer Institute Research Center, New Delhi, have installed the first ever the Made in India surgical robotic system that is known as the SSI Mantra, devised by the New Age Children Made Tech startup SS Innovation. So इस टाइप का फर्स्ट इट्स टाइप ऑफ द रोबोटिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, सो जस्ट रिमेंबर रखो. नेक्स्ट वन इज द फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट, BK सिंगल पास अवे. सो ऑब्वियसली सेक्शन से इंपॉर्टेंट है. सो विजेंद्र के सिंगल, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द विदेश संचार निगम लिमिटेड, ओके, पास अवे आफ्टर अ प्रोलॉग इलनेस. तो काफी लंबे टाइम से बीमार चल रहे थे तो इनका डेथ हो गया. तो बेसिकली ही इज रिलेटेड टू विच इंस्टीट्यूशन, सो विदेश संचार निगम से रिलेट करके, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट. सो दिस इज द निक नेम टाइप ऑफ द क्वेश्चन, ऐसे भी पूछा जा सकता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट. सो रिमेंबर्स रखो. ओके, डेथ ऑफ रिनाउंस आर्कियोलॉजिस्ट पद्मश्री इनामुल हक, ही इज फ्रॉम बांग्लादेश. सो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, काफी वेल नोन पर्सनालिटी है. सो इनका भी रिसेंटली डेथ हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली सेक्शन हम कवर करें ना. सो ऑब्वियसली सेक्शन से ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी अगर जिसका भी डेथ हुआ है उनसे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है. सो बेसिकली एग्जाम्स के लास्ट 3 मंथ वाला काफी इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट 3 and 4 मंथ वाला काफी इंपॉर्टेंट रहेगा. ओके, अभी के लिए आप एक हैबिट के लिए इस सब सारे न्यूज को पढ़ना स्टार्ट करो, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे. प्रोफेसर डॉक्टर Inamul Haq is a well-known archaeologist, historian, expert in art, and former Director General of the Bangladesh National Museum. Is also no longer alive. At the time of his passing, he was 85. तो ये सब सारे इनके अचीवमेंट है, ये सब सारे अवार्ड्स हैं. इंडिया से जो उनको मिला था पद्मश्री अवार्डेड इन ऑनर ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन. सो पद्मश्री भी इनको मिला. ही इज फ्रॉम बांग्लादेश, बट इनके जो वर्क थे उस वर्क के लिए इंडिया ने इनको पद्मश्री भी अवार्ड किया था. तो एक वेल नोन पर्सनालिटी है. पद्मश्री अवार्डी शुहोन बनर्जी पास्ड अवे. सो बेसिकली ये काफ़ी वेल नोन डॉक्टर हैं फॉर टेकिंग द 1 रुपीज़ एज अ पर विजिट. जो फीस होती है एक डॉक्टर की 1 रुपीज़ में ये ट्रीटमेंट करते थे. सो काफ़ी वेल नोन डॉक्टर हैं फ्रॉम द वेस्ट बंगाल, एंड ऑल्सो ही इज द रिसिपिएंट ऑफ पद्मश्री. सो एक वेल नोन सोशल रिफॉर्मर, सोशल वर्कर भी बोल सकते हैं. इस टाइप का इनका जो एक आइडेंटिटी है, सो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है. इनका भी डेथ हुआ है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट. इंडियाज फर्स्ट टीचिंग रोबोट इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडस इंटरनेशनल स्कूल. सो दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट इट्स टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, इट्स टाइप ऑफ रोबोट. सो जहां पे भी फर्स्ट लग जाता है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स के लिए. रिमेंबर रखो, एज पार्ट ऑफ द कोलैबोरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी इन द स्कूल्स, इंडस इंटरनेशनल स्कूल हैज लॉन्च्ड द इनोवेटिव एंड द फर्स्ट टीचिंग रोबोट इन द इंडियन ईगल रोबोट. सो ये सब सारे इंफॉर्मेशन है, आपको सिर्फ रिमेंबर्स रखना है. इट इज डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन. लार्जेस्ट पिंक डायमंड इन 300 ईयर. देखो ये भी काफी बड़ा न्यूज था, मैंने काफी देखा था, वायरल न्यूज था ये. लुलू रोज फाउंड इन एंजोला. सो अ रेयर प्योर पिंक डायमंड believed to be the largest found in 300 year has been unearthed in the Angola, a country in the Central Africa. सो ये अपने आप में एक बहुत ही रेयर टाइप का डायमंड है, विच इज़ कॉल्ड द पिंक डायमंड. सो अभी 300 ईयर्स के बाद ऐसे डायमंड्स को मतलब बोल सकते हो कि इवैक्यूएट किया गया है या फिर फाउंड किया गया है. सो बिकॉज ऑफ इट्स यूनिकनेस इट वॉज द पार्ट ऑफ द न्यूज़. सो पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम्स में भी पूछ ले, तो ऐसे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी होती है. AAI Airport Authority of India, Leh Airport is being built as a nation first carbon neutral airport. Okay, so this is also the first its kind of the airport. So the first Airport Authority of India, Leh Airport is being build a carbon natural airport as a first in India. So आपको देखो कार्बन नेचुरल के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखनी है, what is it exactly. So geothermal system in the hybridizations with the solar PV plant will be provided in the new airport thermal building for the heating and cooling pressure. तो ये सब सारे इसके फीचर है. द सिस्टम वर्क बाय एक्सचेंजिंग द हीट बिटवीन द एयर एंड ग्राउंड एज इट्स हीट पंप आर यूज्ड टू स्पेस हीटिंग एंड कूलिंग एज वेल एज द वाटर हीटिंग. सो दिस इज द फर्स्ट इट्स काइंड ऑफ एयरपोर्ट. सो जस्ट रिमेंबर रखो. ओके गाइस, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम द जुलाई मंथ. सो जो मैंने यहाँ पे कवर किया, ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं. सो इन्हीं से रिलेट करके बेसिकली यही सब एरियाज होते हैं. स्पोर्ट्स होता है, ऑब्चरी होता है, इंटरनेशनल न्यूज़ होता है, नेशनल न्यूज़ होता है, गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं, और भी इसी टाइप के जो भी मिसलेनियस क्वेश्चंस, मिसलेनियस न्यूज़ जो यूनिकनेस होते हैं एक्सपेक्टेड हो जाते हैं एग्जाम्स के लिए, दैट यू हैव टू प्रिपेयर. सो यहाँ पे कुछ मैंने ऐड किया है. इफ़ यू हैव रीडिंग हैबिट ऑफ न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या मैगजीन पढ़ते हो, तो वहाँ से ऐसे न्यूज़ को कनेक्ट कर सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ओके दिस टाइप ऑफ न्यूज़ इज
फॉर एग्जाम्स, ऐसे न्यूज़ एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं बेसिकली, और भी कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट, पॉलिटिकल इवेंट ये सब पढ़ना नहीं होता एग्जाम्स के लिए। ओके, सो इसी वे में आप प्रिपेयर करो, एंड इफ यू वांट डेडिकेटेड कंटेंट, डेडिकेटेड बैच, राइट कंटेंट फॉर योर प्रिपरेशन, सो हियर यू कैन इंक्वायर बिकॉज वी स्टार्टेड द बैच फॉर द 2023 and 2024, okay, and dedicated batch for the TISNET. So live classroom है for out of Mumbai, out of Maharashtra student के लिए classroom program है. If you are belong to Mumbai, so you can join our Borivali, Vasai and Dadar branch. Numbers are given, and for online inquiry 8828581455, or you can visit on our website. And guys, channel को subscribe कर लो because you people will get the continue update related to your exams, your study, and content related to the GK, static GK, everything, and you can follow us on social media also. Okay guys, and other than, if you have any other questions related to the exams, related to the content, GK, anything, you can ask in a comment. So if it will be relevant, so definitely I will reply, as well as if possible, so I will make a video based on your doubt and question. Okay, so chalo, see you in next session with the new topic of static GK, and just continue, keep your preparation, continue, and see you in next session. Jai Hind.